answers like this. But सोचा कि चलो एक बार ये भी करके देखते हैं बहुत कैसे अमेजिंग कैसे एक्सपीरियंस होता था। है, सबके लिए आंसर्स कैसे आते हैं कि नहीं आते। बहुत अच्छे आंसर्स आए थे। और एक्चुअली आपने I जो had लास्ट chosen. टाइम I was no, no. Please go on, go on. नहीं, मैं बस ये बता रही थी कि जो मैम ने उससे बोला ना कि थोड़ा सा ठहराव आ गया है, थोड़ा सा वो आ गया है, थोड़ा सा स्टेडीनेस आ गया है, दैट इज ऑलरेडी देयर, आई कैन फील दैट। Great. So After you the switch words that you had given me and asked me to write that anger go away, frustration go away, leave me, I recognize you, appreciate your presence, but now it's time for you to go. So I used to do that every day. high five. Thank you so much. I Same with really me. love when हाँ जी Loads of love to you. Yeah, same with me, Sonia ma'am. First wala, I was bit confused between which one to pick. मैं pile 1 pick करूं या 2 pick करूं, फिर second में जाके compromise करके second को pick की. And whatever, when I was going through the reading, I realized, yeah, what you said is 100% right, and it was dot on. Because you said कि maybe first वाला situation था, अभी second में चले आए, and it was exactly the same. Yeah, as Kashvika ji had just said कि थोड़ा वो calmness and anxiety कम हो गई है. good to know, So good yeah, to know, it I good hope to know. whatever. Yeah. First of all, thank you reading Thank के you so लिए, much. बताने के लिए that reading was apt and it was bang on. Thank you so much for that. और thank you for joining this group also, because my purpose is to give more and more and more. कि कुछ ऐसा हम करें ताकि जितने भी लोग इस मिशन में हम इकट्ठे हैं, we all are, we actually it's a mission for me, कि जितने ज्यादा लोग हम इकट्ठे होंगे, जितनी ज्यादा हम ऐसे ग्रुप हीलिंग्स करेंगे, it will lead to a something totally a different, and it will help everyone to grow. अभी तक हम बहुत बार लोगों ने सुना होगा कि यू नो अ फीमेल एक औरत ही औरत को काटती है और उनको आगे बढ़ने से रोकती है, एंड यू नो व्हेन वी वर्क डिफरेंटली, व्हेन वी वर्क एज अ टीम, व्हेन वी वर्क एज अ ग्रुप एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर, कि हम उन दूसरों की प्रॉब्लम्स को और उनकी चीजों को समझ के आगे बढ़े, तो व्हेन वी वर्क एज अ टीम इट टेक अस टू समथिंग टोटली डिफरेंट. इंस्टेड ऑफ होल्डिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ कि मुझे कुछ आता है वो मुझे अपने तक रखना है, आई डोंट वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड. द मिनट आई थिंक आई प्लान कि नहीं मुझे शेयर करना है, द मैजिक बिगिंस, एंड इट इज फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मी, दिस इज विद एवरीवन. Yes, ma'am, I completely resonate with what you're saying. When I was, I think I was in college, so I used to actively participate in everything. तो everybody used to say, नहीं नहीं यार, जैसे भी आपने कहा कि एक औरत ही औरत को काटती है, तो मेरे हमेशा से दिमाग में रहता था कि अगर आपने ये बोला एक औरत औरत को काटती है तो ये एब्सोल्युटली गलत है. अगर हम एक औरत होके दूसरी औरत को नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझ सकता. एग्जैक्टली, एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर फॉर दैट. एग्जैक्टली. और वो सो होता यही है कि हमें हमेशा ये सिखाया गया है, ये समवेयर अदर वी हैव यू नो बीन पुट इन आवर माइंड, नहीं 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 ये गलत है, वो गलत है, वो हमारा अच्छा नहीं चाहते, वो हमारा ये नहीं चाहते. आई नो देयर आर पीपल, लेट्स नॉट थिंक अबाउट देम, let's think about ourselves, what we best can do for others, and as a together as a team, right? Okay. Today I want to know one thing. Abhi at present, do you have any pain, any ache in your body? कहीं कोई pain या ache है तो बताओ please. मैम मेरी जो नेवल है ना, पिछले 3-4 दिनों से वहाँ उस एरिया में बहुत ईचिंग है और हल्का हल्का पेन है. और लेफ्ट साइड ऑफ माय बॉडी, लेफ्ट साइड मतलब एग्जैक्टली नेवल के साथ साथ में रेडनेस है. Left side, the upper body or the lower body? नेवल के साथ साथ, इन लाइन विद द नेवल. Okay. Just that portion is painful? यस यस यस. Okay. Anybody else? Anybody facing any issue regarding any other physical pain? रीटा जी आपका कुछ
heavy on head and left leg pain. Okay. So more it is coming from the left. Okay. Left side. Fine. For me, it's lower backache. It's been there from ages now. I don't remember since kitne saalon se hai, but it is there, always there. And with little bit of exertion, I have this disc problem. That is what doctor had told me. So a little of bulging out is there, L5, L6. So it's मैं उसको complain इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि it's been there from ages. So I it can became understand. a routine Part thing. of your So, life. Like ये तो normal है. So आदत हो गई है. Exactly. Normal है. ये तो more than normal है. Yes, true. Okay. Yeah. Mona, is there anything which you need to, as Mona has shared already? Okay. Renuji, if there's something you want to share, any pain, because we will be doing some healing. Okay. Right arm and back side of shoulder. Right arm and back side. Okay. Okay. Fine. Everybody should have water with them. पानी होना चाहिए आपके पास. आज हम जो हीलिंग करेंगे वो ये अभी जितने लोग लाइव हैं उनके लिए भी it will work, and even when people watch it later on as a recording, that will also help them. Yes, recording is on. And आज जो हम करेंगे हम साथ में थोड़ा सा चक्रा की नॉलेज करेंगे और चक्रा हीलिंग करेंगे साइड बाय साइड. It will be healing done by me, as well as we will be doing something with music and with sound. Once everybody is there, do let me know, and please switch on your cameras. Ma'am, Ruchira has sent you a message. Where? On Telegram. On Telegram, I think. Yes, on Telegram, she has sent you a message. Can you hear any music? Background music? आपको आवाज आ रही है सबको? लम एक ऐसा बहुत ही साउंड है. This is feeble a है मैम. sorry. Come again. बहुत ही feeble sound. It's slow for everyone. There is no sound as such. It's Sorry. Come again. Now. not able to hear anything, ma'am. How's the sound now? No. No sound? Same Now for it's better. everyone? Yeah, it's okay. Better? Yep.
It's Everyone, dropping all the time. जब बढ़ जाता है उसके बाद धीरे से नीचे आ जा रहा है. it is okay with everyone or not? So lam is a sound for root chakra, मूलाधार चक्र. जैसे जैसे हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं, ये हमारा बेस है, मूल है हमारी जिंदगी का. यहाँ पे अगर हम स्टक हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर नहीं जा सकते. ऊपर इन द सेंस हम अपनी एनर्जीज को समझ नहीं सकते. So just close your eyes for 5 minutes and try to feel the energies of this mantra, this sound, and then I will let you know something more about this. Take 3 to 4 deep breaths. Inhale and exhale through your nose.
Slowly, you can open your eyes. How was the experience? हवाई छोड़ेगा काम भी करेगा एसी ऑन और माहौल गर्म अर्बन कंपनी बुलाओ How was the experience? And the sound was very feeble. बहुत feeble था और background noise बहुत था. I know. पर अच्छा था. जो भी faded sound आ रहा था, it was resonating throughout the body, and I could see Guruji. Oh. जा पुत्र कल्याण किता. This is how you always say. Good, good. So what was the purpose? क्योंकि कहीं ना कहीं every sound is for us. ये जो हर sound है हमारे चक्रा की, इस टाइम पे जो एनर्जीज है, हम कहीं ना कहीं ग्राउंडेड कम है. जो आज का जो अगर हम नवरात्रि की बात करें तो फर्स्ट जो नवरात्रि होती है दैट इज रिलेटेड टू रूट चक्र. So this was my purpose कि हम वो आज जो हमें एनर्जीज चाहिए वो एनर्जीज हम लें. So this was the reason कि हम थोड़ा सा लम की एनर्जी जो हमारे रूट चक्र की एनर्जी है उसको हम अपने अंदर, क्योंकि हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वेदर वी आर हीलर्स और नॉट, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज जानते हैं, लेकिन कई बार हम उनको यूज नहीं करते हैं, हम भूल जाते हैं. बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू तो हम उस चीज पे चले जाते हैं और जो पुराना बेस है हम उसको भूलते जाते हैं. हमें लगता है चक्रास तो ठीक होंगे ही होंगे, बट बेस वही है. चक्रा को हमेशा रेगुलर बेसिस पे हमें अपने चक्रास को हील क्लीन एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है. ठीक है. वन थिंग अभी हम बात करते हैं, तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज की एक तो मैं चीजें बताऊंगी. हाउ टू ब्रीथ व्हेन यू आर फीलिंग हेवी इन योर बॉडी, फर्स्ट थिंग. सेकंड, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि अपने हाथ से हम कैसे कुछ अपने पॉइंट्स को प्रेस करके हम अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं. ओके. Okay, so everyone ready? Just show me thumbs up. Let me see everybody is there or not. Let it. Okay. Okay. So breathing exercise में inhale करना है nose के through, slow inhaling through your nose and exhaling through nose. Inhale और exhale दोनों हम nose से करेंगे और बहुत slow, कोई fast inhale और exhale नहीं करना, बहुत slow करना है. मैंने inhale और exhale किया but there was no sound, there was nothing, just I could feel inside कि मैंने inhale और exhale किया. Okay, so just do it for 2 minutes and feel. And जब भी आप inhale exhale कर रहे हैं, आपके जो हाथ हैं उनकी पोजीशन, आप अगर चेयर पे बैठे हो, पैर आपके ग्राउंड को टच करेंगे and your hand should be like this, one above another.
आपकी लैप पे, आपके थाइस पे होने चाहिए. Okay, not on your lap, on your thighs in fact. कभी भी आप ऐसा कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप अगर टाइम आप अपने मोबाइल पे टाइम क्लॉक कर दीजिए, वॉच लगा दीजिए, ताकि आपको पता चले 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आप जितना भी करना चाहते हैं, वन गो. आई डोंट बिलीव इन काउंटिंग्स, क्योंकि जब हम काउंट पे जाते हैं तो हमारा जो सारा फोकस होता है वो काउंट्स पे चला जाता है, रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर डूइंग. इसीलिए मैं कभी भी चैंट्स पे भी आपको फोकस नहीं कहती हूँ कि नंबर ऑफ चैंट्स पे फोकस डालें. आई ऑलवेज से कि जितना आपका मन कर रहा है आप उतना कर लो. Once you feel lighter, you can come back. आपको और करने का मन कर रहा है, आप कर सकते हो. Your body knows better. Once you all are back, do let me know with thumbs up कि आप लोग ये कर चुके हो. सबका हो जाएगा तो. Should I take it further? Yes, Sonia ji. I'm taking yes for everyone. Okay. My purpose to have these actually बहुत लोग जानते हैं कि लास्ट 2 टाइम से हम लोग नवरात्र और शिवरात्रि पे हीलिंग कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट हीलिंग जो थी इट वाज गिवन बाय मी, जितने भी मेंबर्स थे उनको. देन आई टुक फर्दर, जिसमें मैंने स्विच वर्ड इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि आप लोग वो स्विच वर्ड्स को बोलो और सीखो और आप अपनी चीजों पे काम कर सको. Now I want to take it another level. Another level means I want you to give some knowledge about
जिसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी कहते हैं, या हमारे जो अपने हाथ हैं, कैसे हम अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी, फिजिकल बॉडी की कोई भी पेन को हील कर सकते हैं. आई वॉन्ट यू टू ऑल बी हीलिंग योरसेल्फ, ताकि आप उस स्टेज पे पहुंचे जहां आपको किसी हीलर की जरूरत ना पड़े, स्पेशली फॉर एटलीस्ट फॉर फिजिकल पेन्स. और धीरे धीरे आई वांटेड कि इसको और आगे लेके जाएं, जहां आप सब लोग अपने घर के और अपने लिए हीलर्स बन जाएं. हाउ इज दैट? ओके. तो अभी जैसे कि मुझे याद है, सबने बोला कि पेन है लेफ्ट लेग में. तृप्ति सेड पेन इन नेवल के आसपास, राइट? और शोल्डर पेन. ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको यहाँ बताती हूँ. कैन एवरीबडी सी मी? You all can see me properly? This is a thumb. ये हमारा thumb है. लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. अगर हम बात करें शोल्डर की, तो शोल्डर जो हमारे ये 3 स्टैंड्स होते हैं, राइट, थंब पे 1 2 3, किसी किसी के 2 होती हैं ये लाइंस. जो फर्स्ट होता है हमारे नेल से, जो फर्स्ट होता है उसका जो साइड है, दिस इज आवर शोल्डर्स. एम आई क्लियर? लेफ्ट एंड राइट शोल्डर. तो किस किस को शोल्डर पेन थी? डू लेट मी नो. ओके ओके, एनीबडी एल्स? ओके. रेनू, आपको शोल्डर में लेफ्ट पेन था, राइट था? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को. Right, right, ओके. right shoulder. अमृता, या आई नो यू ज्वाइन लेट, आप बता सकते हो आपकी बॉडी में कहीं कोई पेन है? हमने थोड़ा सा पहले लम्प की साउंड की थी, उसका हमने एनर्जीज ली थी. आई थिंक जब आप आए थे तब वो लम्प की साउंड चल रही थी. और उसके बाद अगर आपको कोई बॉडी में कहीं पे भी पेन है तो आप बताओ, क्योंकि वो चीज मैं अभी बताने वाली हूँ. ठीक है, कि कैसे है. ओके, राइट, ग्रेट. इफ यू डोंट हैव एनी पेन, बट आप ये जहाँ जब भी कभी आपको कोई पेन होता है या पहले कभी रहा है, तो इफ यू हैव सम इश्यूज यू कैन चेक अगर उसमें आता है तो. सो दिस साइड इज द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, राइट? हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. राइट साइड जो है वो शिव को रिप्रेजेंट करती है, और जो लेफ्ट साइड है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है. यिंग एंड यांग को रिप्रेजेंट करती है. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर आपको राइट साइड पे है तो आप ये पॉइंट चेक कीजिए और यहाँ प्रेस कीजिए. You can do it right now and do let me know how you're feeling. Just press here. अगर आपको पेन होगा तो जब आप उसको टच Sure. करोगे आपको पेन आपके हाथ में भी आएगा. Do let me know. And rest also can try to check whether उनको पेन है कि नहीं है. You have to. अगर आप अपने हाथ से नहीं कर पा रहे हो, यूज एनी पेंसिल और पेन ऑल्सो. इसको ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है. मोना, इज इट क्लियर? Renu, are you doing it? I can't hear you. Yes, I'm doing it. Are you feeling pain? Yeah, it's there in the right hand side, the right thumb. Okay. Keep pressing that. Even you can rub like this.
Can you see that? Everybody? Like this, or you can rub Okay. it like this. ओके अब अगर हम बात करें राइट साइड रिप्रेजेंट करता है all the male members in our life. Okay, father, brother, husband. तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें रिजॉल्व करनी है. ओके और शोल्डर पे पेन एक और रीजन भी है. वी फील बर्डन कि हमारे ऊपर हमारे कंधों पे उतना भार है जो हम नहीं झेल पा रहे हैं. आई एम टेकिंग इट मोर देन व्हाट आई कैन हैंडल. ओके तो लेट्स डू अनदर थिंग. ये तो मैंने आपको फिजिकल लेवल पे एक चीज बताई कि ये कैसे पेन जाता है. इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे एंड दैट विल लीड टू अ हीलिंग सेशन. सेकंड, लेग्स पे किस किस को पेन था? लता जी हैज पेन इन L1 एंड L2. उसके अलावा लेग्स में किसी को पेन? Sonia ji, I had, as you know, I had broken my ankle. तो उस जगह में अभी स्क्रू वगैरह डाला हुआ है. तो that side, it's on my right leg, right ankle, both side, inside as well as outside. So it's pain over there. But that is along with the healing thing. Or because now when I'm walking and it troubles me a lot. ओके तो अगर हम लेग्स की बात करें तो दीज टू, ये जो हमारी 2 मिडिल फिंगर हैं हाथ की, these are our legs. Okay, this is our hip joint. ये हमारा नी का एरिया है, ये हमारा एंकल है एंड दिस इज आवर टो. Am I clear? Yeah. Hip, knee, ankle, toe. Toe. Left and right leg. Clear? अब आपको जहां पेन है आप उस एरिया को, अगर आपकी पूरी लेग में पेन रहता है, थाइज वगैरह कहीं पे भी, तो आप पूरा इसको ऐसे रब करोगे, ऐसे आप करोगे इसको. यू विल डू इट लाइक दिस. ओके जिस लेग में ज्यादा पेन होगी आपको पता चलेगा. क्योंकि उस हाथ में भी आपको दर्द होगी. ओके सिमिलरली लाइक दिस, both hands. Yes. अगर नीज में है तो नी का पॉइंट ये है. लता जी दिस इज फॉर यू. आपके बैक पे पेन है, सो दिस पॉइंट इज फॉर यू. दिस पॉइंट यहाँ पे, हाँ या दिस इज फॉर यू. ओके ये एरिया को आप बैक के लिए कर सकते हैं. Outside, right? यस Outside, yeah. Okay. बोथ द हैंड. Okay. और ये जो 2 फिंगर्स हैं ये हमारी आर्म्स हैं. सेम वे शोल्डर में दर्द है, आप यहाँ पे भी इसको ऐसे भी दबा सकते हो. ओके शोल्डर पॉइंट्स, राइट. अभी तक सबको क्लियर? एनी क्वेरी, कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन?
Nothing. अमृता आप कुछ कह रहे हो? नहीं, वो कंफ्यूजन थी, ऐसा बोल रही हूँ. अच्छा, ओके. अब नेवल की बात करते हैं. सेंटर, अगर हम पाम पे देखें तो दिस इज आवर सेंटर, ये हमारा स्टमक है. ओके. और अगर हम यहाँ बात करें हमारे थंब पे, तो ये जो मिडिल है उसका जो सेंटर है दैट इज द नेवल पार्ट. तृप्ति आप यहाँ प्रेस करके देखो, आपको कुछ पेन फील हो रहा है? जस्ट डू दिस, इसको करो थोड़ा सा. मैम पर राइट हैंड में नहीं हो रहा, सिर्फ लेफ्ट हैंड में हो रहा है. I think Aman has ever told me. Aman, you are here right now. यस मैम. हाँ जी. हाँ जी. अच्छा, आपने मुझे एक बार बताया था शायद आपके बैक में पेन, लेग्स में पेन है, राइट? या बैक में? नहीं, लेग में था, वो नी में था एक्चुअली. वो तो आई फॉल डाउन ना, इसलिए था. वो ठीक हो गया. अच्छा, वो ठीक है. हो गया मैम. ओके ओके. तो मैंने कहा आपको भी अभी देखें, चेक करें कि आपको कहाँ पेन है. ठीक है, ओके फाइन, गुड. मैम अभी मैम तो जिनको सोने में नहीं है. नींद में आते हैं उनके लिए क्या इलाज है? क्या चीज? कम अगेन. People who have insomnia, can't sleep. उनके लिए मैं सबसे अच्छा बैक फ्लावर बोलती हूँ. बट ऑब्वियसली जब हम नहीं दे सकते वो, तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो टिप है हमारा थंब का, दे नीड टू प्रेस हियर. ओके. और यहाँ हमारी 2 आईज होती हैं. लेट मी मार्क इट देन इट विल बी इजी. लेट मी गेट माय पेन. Can you see eyes, everyone? Is it clear? Yes. Yes, it is visible.
ये जो हमारा पोर्शन है, ये जो अपर पोर्शन है जिसको मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, दिस इज हेड, ओके। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये फोरहेड है हमारा, जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ किया है, राइट। तो अगर किसी का इंसोमेनिया है, with the pen or with the pencil, they can tap like this on this area. Okay. Towards the forehead area? Yes. Oh, Towards the okay. forehead area, and even they can press their eyes. It will give them calmness. क्योंकि हमारी जो eyes की nerves है वो भी कहीं ना कहीं it's go up towards upward ब्रेन के उसमें, तो वो भी जब शांत होती है कहीं ना कहीं वो जो हेवीनेस है वो होता है, तो वी गेट स्लीप इजीली। इज इट ओके? यहाँ पे समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? Yes. This part is clear to everyone? Yes, Sonia ji. Everyone, everyone. I want yes from everyone. Yes, ma'am. Yes, Dean. तो आज की रीडिंग चेक की थी। आज जो एक सिंगल कार्ड सबके लिए निकल के आया था, हीलिंग। So what baggage you are carrying, everyone? क्या चीज है जो आप हील करना चाहते हैं, इमोशनल और फिजिकल? What do you want? फिजिकल लेवल पे we have Emotional. work. Always emotional. एक्चुअली ये जो इमोशनल है ना, दिस लीड्स टू फिजिकल इश्यूज। तो फिजिकल इश्यूज जब आने शुरू हो जाते हैं, सो दे ऑलवेज टेल अस कि यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग व्हिच यू आर नॉट लुकिंग इनटू। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल पे। इमोशनल लेवल हम वही केसेस लेते हैं जो अभी हमारे पास आए हैं। लेट्स टेक लेग्स और शोल्डर का आया था, ओके। शोल्डर का मैंने जैसे बताया, लेफ्ट एंड राइट अगर आपका कुछ आ रहा है तो आप ऑन अ सुपरफिशियल लेवल तक आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि ओके, आई हैव सम इश्यूज विद द मेल मेंबर ऑफ माय फैमिली, और आई हैव अ इशू विद माय फीमेल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली और विद फीमेल्स अराउंड मी, ओके। ये एक जर्नल हम अगर अपने आप को समझाने के लिए या अपने आप को और ज्यादा क्लैरिटी देने के लिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है हमारी लाइफ में और उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, ओके। Suppose if you are having some issues with the male members, let's take an example with the male members first. Male members, let's go to the first person in our life. सबसे पहले कौन आता है? Father. So close your eyes, just visualize और start thinking, जब आप 2 साल के थे या 3 साल के छोटे बच्चे थे, कोई ऐसी मेमोरी आपके फादर की जो आपको हर्ट फील करती है, या यू फील दैट काश ये चीज नहीं होती, काश ये ना हो पाता। लेट्स सी व्हाट कम्स अप। Ma'am, will you please repeat it again? I said go back to your father when you were 2 or 3 year old child. Just remember कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हर्ट फील कराती है अभी तक, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो या आपको याद आ रही है वो चीज, तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? जस्ट कम आउट विद दैट। सी, मेरे को जितनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी उतना ज्यादा इट विल हेल्प एवरीवन टू हील, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब रिलेटेड होते हैं किसी ना किसी चीज से। मे बी इट कैन बी एंगर ऑफ योर फादर, मे बी आप अपने फादर से डरते थे कि अभी हमने कुछ गलत कर दिया तो डांट पड़ जाएगी, और जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए डांट बहुत मायने रखती है, यू नो, वी कैन सी वेरी इजीली
when our kids are 2 or 3 year old, उनको जरा सा कुछ बोलो, सिर्फ हल्का सा भी, तो they get, you know, start crying or get fearful. Once they start growing up, उनको आप कुछ भी बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता, जैसे कहते हैं ना, ठीक हो जाते हैं. So just go to that memory of yours. Anyone, any memory they want to come up with? Sonia ji can't find any issue with dad. Dad, I was always dad's daughter. तो पापा को याद करती हूँ तो स्माइल आ रही है और कुछ नहीं आ रही है. I have only happy things about Okay. that. Okay. Thank you. Fine. Anybody else? Okay. If nothing is coming up, let's see what we can do. हम कोई मेमोरी नहीं है, तब भी हम क्या कर सकते हैं? Just close your eyes, sit in a pyramid. Visualize that you all are sitting in a pyramid with your father. With the crossed legs, you and your father are sitting opposite to each other. Just see a white light entering that pyramid. Both of you are in white light. See your father smiling at you, you smiling back to your father. Hug your father. बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी भी बचपन में अपने फादर को हग नहीं कर पाए, बोल नहीं पाए, या फादर उस तरह से नहीं बोलते थे, बताते थे that what that child mean, that you mean to them. So just see those emotions, those feelings. अगर कोई ग्रजेस हैं, अगर कोई ग्रजेस हैं तो आप बात कर सकते हो, नहीं है तो just send more love to him and that love comes back to you. अगर आपने कभी अपने फादर को लव यू नहीं बोला, थैंक यू नहीं बोला, तो ये आपके पास बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है टू से हिम थैंक यू एंड लव यू. Thank you for each and everything he has provided to you emotionally, physically. Just connect more with your father. Even if your father is not there, still
Try to connect. Tell him how you felt when he was not there. And few things which you could not ever tell your father physically, tell him that right now. So today we will be doing healing for the father side. आपके कोई अगर grudges हैं तो भी, नहीं है तो और भी अच्छा है कि आपका relationship आपके father के साथ better हो जाएगा. अगर कोई grudges हैं तो I will suggest you everyone can write it down and burn that paper. और आप जो पिरामिड में बैठे हैं, जब आपको लगे कि आपने पूरी उनसे बात कर ली है, जो भी आप बात करना चाहते थे या जो भी कहना चाहते थे, then say thank you to him, to your own self, and to that pyramid, and this time, this situation, and come out of it. और अभी इस सेशन के बाद half an hour I will be giving healing to each member of that group to have a better relation with their father. Thank you so much, Sonia ji. How was it? अभी जो हमने किया वो I कैसा was रहा आपको? smiling all the time. हाँ जी. I was talking. Yeah, I was talking. I was smiling. I was quite happy. Good. मिलने को मन कर रहा बहुत. Sending lots and lots of love to him. Thank you so much. Thank you to everyone. Let everybody come back and then thank you.
Is everyone out of meditation? It was not actually a meditation, it was just a connecting with our parent or with our father. But sometimes it helps as a healing. How was everybody's experience? Do share, and then I will wind this session. Few tips to be given to everyone. Good. It's good that we all actually हम लोग कभी भी ऐसे बैठ के आराम से अपने पेरेंट्स को कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं. And when you do this, it really helps. Even if you have any grudges, if you have anything you want to tell them, this is the best way to tell anyone. Not only your parent, it can help you for everyone and anyone. I will be sending some chant also for today. जब हम एक healing कर रहे हैं जिसमें हम father को involve कर रहे हैं, today we will be cleaning because it's a root chakra. ठीक है, तो root chakra का एक हिस्सा mother से आता है, एक हिस्सा father से आ रहा है, right? तो अगर हमें अपने रूट चक्रा को हील और क्लीन करना है और उसको एक्टिव करना है और बैलेंस करना है, सो वी नीड टू वर्क विद आवर पेरेंट्स. So this is what we will do today. So this is how the whole healing comes up. Healing एक बहुत एक्चुअल अगर हम हीलिंग की बात करें ना तो इट्स अ वेरी वाइड टर्म, वेरी वाइड टर्म. आज मैं भी किसी से बात कर रही थी, उनको मैंने यही बोला कि लोग हीलिंग मोडालिटी को आपको सिर्फ एक चीज बता देते हैं कि ठीक है एक चीज को हील करना है, आपको एक रिलेशनशिप हील करना है, बट उस रिलेशनशिप में आप आए हो किसी रीजन से आए हो. यस, यू आर देयर टू लर्न,
एक वो चीज है। सेकंड है कि आप वैसा ही हस्बैंड अट्रैक्ट करते हो, आप वैसा ही अपने लाइफ के आसपास के लोग अट्रैक्ट करते हो जो ऑलरेडी आपके पास जैसे कुछ थे। You know why this is said कि a female always get attracted to a partner who look or behave like her father, and it is vice versa for the boys. They always get attracted to a female जो उनकी मदर की तरह दिखती या बिहेव करती है, या उनको उसमें अपनी माँ की छवि दिखाई देती है। एंड इट इज ट्रू। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर उस चीज को ठीक नहीं कर पाए, या हम एक रिलेशनशिप से जो हमें जो भी मैसेजेस लेने चाहिए थे वो चाइल्डहुड में अगर हमें नहीं समझ आए, तो वही चीज हमारे लिए आगे जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन 100 में से 80 to 90% we follow that, everybody follow those things. They attract the same qualities of their father, they get attracted to that, और वो कहीं ना कहीं knowingly, और साथ साथ जो आपको अपने फादर की चीजें उस टाइम शायद नहीं समझ में आती, या आपको वो बुरी या सही नहीं समझ में आ रही थी, वो आपको अपने पार्टनर में दिखाई देगी। सेम फॉर द मदर एज वेल, सेम फॉर योर स्पाउस ऑल्सो। ये बहुत कॉमन सा है, एक चीज है। I have heard so many times people come and tell me, you have started behaving like my mother, she or he has started behaving like so and so. They generally tell me that. आपके साथ ऐसा है कि नहीं? I really want to know. अभी तक जो भी मैंने अभी ये बोला है, does this resonate with you or not? Only one yes? So it doesn't resonate with others, or they are just introspecting कि ये ऐसा है कि नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? अमृता, in that case I will talk to you. आप मुझे सेपरेटली मैसेज करना इस चीज के लिए, देन आई लेट यू नो। ओके, तो जब हम, हाँ जी अमन, कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं। Does this resonate with you? No. Okay. अच्छा, आपकी जो ये पिक है, इस पे यूनिकॉर्न है, कैन यू सी दैट यूनिकॉर्न? हाँ जी। Okay. So your daughter has love for unicorns, या आपका है ये? नहीं, बहुत ज्यादा। She loves unicorn? एक्चुअली बच्चों के थोड़े क्रशेस है, वो चेंज होते रहते हैं ना, तो दिस इज हर लेटेस्ट क्रश, यूनिकॉर्न। तो इसके साथ आप एयर एलिमेंट, यूनिकॉर्न इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट, तो आप अगर उसको कभी कुछ एंजल्स की हेल्प या कुछ चाहते हो उसके लिए, तो आप उसको एयर एलिमेंट उसका बैलेंस कर सकते हो। ओके ओके। क्योंकि यूनिकॉर्न ने मेरा ध्यान डाइवर्ट कर दिया, बिकॉज यूनिकॉर्न इज माय लव एंड माय डॉटर्स लव आल्सो। हाँ, ये मुझे तो मैम पता ही नहीं है ये होता क्या है। ये उस बस वो ही कहती है यूनिकॉर्न वाला केक, यूनिकॉर्न वाला हेयर बैंड, यूनिकॉर्न वाला सब कुछ, तो उसी से पता चला। That is their love. Okay. Where was I? I was talking about father, family, right? Okay. जब हम रूट चक्र की बात कर रहे हैं, तो फैमिली को अगर हम अपनी फैमिली की हीलिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली अपने रूट चक्र की कर रहे हैं, एंड इट इज वाइस वर्सा। When we are healing our root chakra, we are healing our parents also. अगर आपको लग रहा है कि हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हील करना है, व्हेन यू आर हीलिंग योर रूट चक्रा, यू कैन आस्क फॉर दैट। अगर आप कोई मोडालिटी नहीं जानते हो,
तो सिर्फ आप लम की साउंड के साथ आप बैठ जाइए, यूज दैट लम साउंड फॉर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर आपसे बैठा जाए, उस एनर्जी को फील कीजिए एंड ट्राई टू हील योर सिचुएशन विद योर पेरेंट्स, मदर और फादर टुगेदर। तब आपको ये लेफ्ट और राइट का नहीं सोचना है कि कौन सा है, पेरेंट्स रूट चक्र, एंसेस्टर्स रूट चक्र, बट एंसेस्टर हीलिंग कम्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, तो हम उस टॉपिक पे नहीं जा सकते। तो हम सिर्फ पेरेंट्स की बात करेंगे अभी। कई बार देखा गया है कि जब हम रूट चक्र को पेरेंट्स के साथ हील करते हैं, इवन आवर रिलेशनशिप विद आवर सिबलिंग इम्प्रूव्स, क्योंकि कुछ ना कुछ हम अपने पेरेंट्स से कैटर करते हैं, कुछ वो भी हमारे अपने पेरेंट्स से, मींस आपके पेरेंट्स से उन्होंने भी कुछ लिया हुआ है, कुछ ऐसे इमोशन, कुछ ऐसी फीलिंग्स, राइट? तो जब हम उन चीजों को क्लियर अप करना शुरू करते हैं एंड वी ट्राई टू कनेक्ट विद आवर पेरेंट कि ओके, दिस वाज द इमोशन वेयर आई फेल्ट बैड, दिस वाज द इमोशन आई फेल्ट गुड। तो आप जब किसी चीज को एक्नॉलेज करते हो, यू नो, व्हेन यू पुट फोकस ऑन दैट पॉइंट कि ये एक सिचुएशन था जहां मुझे अच्छा लगा या मुझे अच्छा नहीं लगा, so you start getting answers, maybe not on the first go, it will take some time, but yes, it will come. तो जब हमें धीरे धीरे वो आंसर मिलने शुरू होते हैं कि ओके, दिस वाज द रीजन, और मे बी ये एक चीज थी या कुछ ऐसा था जो हमें करना था या वो हमें सिखाना था, वो हम नहीं सीख पाए, so my parent, my family was teaching me into this line which I took it other way. So this is how we get our answers. Isn't it sounds, you know, interesting to know more about ourselves, to more about our family, जो हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, और हम लोग अपनी चीजों को वी ऑलवेज बिलीव कि ओके, इसके तो ये इश्यूज हैं, उसके तो वो इश्यूज हैं, नाउ आई एम मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल दैट, यू नो, माय पेरेंट्स एंड माय सिबलिंग, एंड आई नो बेटर, तो हम लोग ये ऐसे ऐसे करें। और ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड कि कहीं गलती वो हमारी थी। जब हम इस प्रोसेस में आते हैं, we understand कि maybe we were not able to understand what they want to teach us, या कहाँ हम समझ नहीं पाए या हम उनको समझा नहीं पाए। It is both the ways. एक छोटा बच्चा जो बहुत छोटा है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे अपने आप को एक्सप्लेन करूं, या उसका जो अगर हम रूट चक्र, थ्रोट चक्र की बात करें, तो उसका थ्रोट चक्र अगर एक्टिव नहीं है, तो वो बच्चा शुरू से अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जैसे उसे करना चाहिए। This that child is carrying from the mother, क्योंकि मदर का शायद थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। So now you understand कि हम कितना ज्यादा अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। बहुत सारी चीजें जो हम आज हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। इसलिए हमेशा बोला जाता है पे ग्रैटिट्यूड टू देम, अच्छी के लिए भी, बुरे के लिए भी। बुरा इन द सेंस कि वो बुरी चीज जो हमें लगती है हमारे अंदर है, दैट वी नीड टू चेंज, क्योंकि वो हमें ये सिखा रहे हैं कि प्लीज हम नहीं कर पाए, ड्यू टू आवर लैकनेस, यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू चेंज, सो डू दैट। और जो हमें सीखनी चाहिए थी, जो हम नहीं सीख पाए, तो दैट इज आवर फॉल्ट। ये बहुत मस्त गेम है, लाइफ इज वेरी मस्त एक्चुअली, लेकिन हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते ड्यू टू लॉट ऑफ थिंग्स। इफ वी टेक, यू नो, हम उसको अगर कट डाउन कर दे सिंपलर थिंग पे, तो लगेगा एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड दिस इज व्हाट मिरेकल्स आर। जो हम मिरेकल्स बोलते हैं ना, दैट मिरेकल हैपन व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग यस इट कैन हैपन। और वो तब होता है जब हम अपने माइंड को बहुत ईज पे ले आते हैं और हम सोचते हैं एवरीथिंग इज सो सिंपल, व्हाई वी मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड। और जब हम उस कॉम्प्लिकेशन से निकल के एक सिंपलर इजी लाइफ में आ जाते हैं, एंड देन व्हेन वी से कि ओके, थिंग्स आर इजी टू हैपन, and then when we say it's easy to happen, it happens. तो ये जो मैजिक है, मंत्रा है, जो मिरेकल है, जो मैंने इसका नाम दिया है, वो ऐसे नहीं दिया, उसका रीजन था that we have that power in us, everyone, just we have to understand that power, what we have, and हम कैसे काम कर सकते हैं।
right? Hope this session helps everyone, and lot more to do for tomorrow and the coming days. And for today, we will be just focusing on father, sending love, gratitude to our parents. अच्छा, मदर को एक अपर हैंड इसलिए मिलेगा क्योंकि आज भी मदर को हीलिंग जाएगी, कल भी जाएगी, तो 2 दिन उनको ज्यादा हीलिंग चली जाएगी. ठीक है? So you know why women is more important, because they are the creators. They are creating everything. This is why I tell everyone, because you have that power to, that day remember हमने जब meditation किया था, new moon का, full moon, I don't recall. I talked about female power, that if you have daughter, you are so lucky because आपको एक chance मिला है अपने ऊपर तो काम करने का, अपने साथ अपनी daughters को इतना strong बनाने का कि tell them that you have that power to go ahead and change everything. So first we need that power for self, and then we can tell them and guide them also to be more that powerful. It's time to create new. Chalo, that's it for today. Let's catch up tomorrow. और अभी इसके session के बाद I will be sending healing to everyone. Either you can relax, you can sit, because this healing will be for 24 hours. Next, it's right now it's 6. So 5, let's say 5 तक ये कल आपके पास रहेगी. तो जो लोग भी अभी नहीं ले पा रहे या जब भी लेंगे, they just have to sit and receive it. I am in a receiving mode to receive the healing sent by Sonia Datta. Just say that, and either you can lie down, you can sit, you can meditate. जो आपको करने का मन कर रहा है करो. Just to feel energies. नहीं कुछ कर पा रहे हो, काम कर रहे हो, still it will work for you. Just say that and receive it. That's it. Chalo, enjoy your time, enjoy your Navratri, and all the blessing and love to each one of you. And see you tomorrow. Again, time, I'm not sure whether it will be same or I will be taking it some other time. Okay? Thank you so Okay, ma'am. Thank you. Take Thank you, care. Sonia, ma'am. Thank you so much. Blessings to everyone. Same to you. Thank you so much. Same to you. Bye. Take care.